Hello Andy, welcome to VIC. Good evening everybody. Okay, today we are discussing about depreciation class in our accountancy. Depreciation. Depreciation. Depreciation means, generally the depreciation meaning is decreasing in the value of the asset is called as depreciation. Depreciation means decreasing in the value of the asset is called as depreciation. Okay, here the depreciation word origin from Latin word of depretium. Latin word of depretium. Latin word of depretium. Okay, here D means decrease. D means decrease and the pretium means price. Okay, now depreciation, what is the meaning of depreciation? Decreasing in the value of the asset is called as depreciation. But in our accounting, depreciation meaning means decreasing in book value of the depreciable asset is called as depreciation. Depreciation means decreasing in book value of the depreciable asset is called as depreciation. Okay, here the depreciation meaning, what is the meaning? Depreciation meaning decrease, decreasing in book value of an asset and depreciable asset. Depreciable asset is called as depreciation. Okay, generally the depreciation meaning is decreasing in the value of the asset is called as depreciation. But in our accounting, decreasing in book value of the fixed asset, book value of the depreciable asset is called as depreciation. Here the fixed assets means like land, buildings, furniture, etc. But here the land is appreciable asset. No, here the land is appreciable asset. But here the depreciable assets means only furniture and patents, furniture, machinery account. These are all depreciable assets. Okay, depreciable asset, decreasing in book value of the depreciable asset is called as depreciation. Okay, here the according to William Pickles says, depreciation is permanent continuing decrease, decreasing in quality, quantity or value of an asset is called as depreciation. He told his own words. What is the depreciation meaning? Depreciation is permanent, continuing decreasing the quality and quantity or value of an asset is called as depreciation. Okay, finally the depreciation meaning is decreasing in book value of the depreciable asset is called as depreciation. Okay, finally the depreciation meaning is decreasing in book value of depreciable asset is called as depreciation. Okay, right here the what are the causes of depreciation? Depreciation, so many causes of causes having there here depreciation causes. Here the causes of depreciation. Causes of depreciation. First one is wear and tear. Okay, when we are put to use in depreciable asset, such asset value may decrease. Such decreasing in the value is said to be physical wear and tear. This is one cause of depreciation. Okay, second cause of depreciation is depletion. Depletion. It is physical deterioration by the exhaustion of the natural resources. Natural resources means mines, oil wells, quarries, timber stands. These are all natural resources. This is also one cause of depreciation. Depletion, that is depletion. And the third cause is amortization.
amortization. This is economical deterioration by the expiration of intangible assets. Intangible assets means like patents, copyrights, goodwill. These are all called depreciation, amortization. Okay, this is also one cause of depreciation. And next one, obsolescence. Obsolescence. It is also economic deterioration by new inventions and technology and new improvements, etc. This is obsolescence. This is also one cause of depreciation. Okay, next one is passage of time. Passage of time. Passage of time. When we are using in depreciable asset, that asset exposed to forces by weather, winds and rains, etc., such that asset value becomes decrease. That asset value decrease. So that is one cause of depreciation. Okay, causes of depreciation, how it is decreasing, which assets and which we are put in our business means causes wear and tear and depletion and amortization and obsolescence and passage of time. Okay, when we are using in depreciable asset, put to use depreciable asset, and that asset, such that asset value may be decrease. Such asset that value may be decrease. The decreasing in the value of asset is said to be physical wear and tear. And depletion means exhaustion of natural resources. Natural resources means like oil wells and mines and quarries and timber stands, etc. Okay, next amortization. This is also economic deterioration, and this is also economic deterioration. It is expiration of intangible assets. Those assets are called like goodwill and patents and copyrights. Okay, copyrights, etc. Next, obsolescence. Here the obsolescence means it is also economic deterioration by new inventions or new technology, new inventions and technology. In this is also one cause of depreciation. And next, passage of time. When the asset exposed to forces of like weather, winds and rains, that asset value may decrease. Decreasing in the value of asset is called depreciation. This is also one cause of depreciation. These are causes of depreciations. Okay, बच्चों, here सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों. Depreciation meaning, what is the meaning of depreciation? Decreasing in book value of the depreciable asset is called as depreciation. Here the causes, which causes means, first cause wear and tear, and the second cause is depletion, third cause amortization, and fourth cause obsolescence and passage of time. Okay, passage of time. Here the word depreciation origin from which word means Latin word of depretium. Here the D means decrease and the pretium means price. Decreasing in price asset value, decreasing in the asset value, book value of the asset, depreciable asset is called as depreciation. This is the depreciation. Okay, here the decreasing depreciation meaning is decreasing in book value of the depreciable asset is called as depreciation, we are saying. Now here depreciable asset, which are the depreciable assets? Depreciable asset होने के बाद depreciable asset होने को 4 conditions fulfill करना है. 4 conditions fulfill करना. Depreciable asset होने को, depreciable asset होने को 4 conditions fulfill करना है. वो 4 conditions. First condition number 1,
एसेट वैल्यू, एसेट यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना, एसेट का यूजफुल लाइफ कितना होना, एसेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना, मोर देन 1 ईयर होना, डिप्रिसिएबल एसेट होने को एसेट वैल्यू यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना. एंड सेकंड कंडीशन एसेट यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना. भाई बच्चों लिमिटेड होना चाहिए सेकंड कंडीशन. एंड थर्ड कंडीशन एसेट का यूज कितने पर्पस होना, बिजनेस पर्पस होना. एसेट का यूज बिजनेस पर्पस होना. एंड नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन इज ownership also included deemed ownership होना. ये 4 कंडीशंस फुलफिल करे तो वो एसेट को क्या बोलते हैं बच्चों, वो एसेट को हमें डिप्रिसिएबल एसेट बोलती है. वो एसेट को हमें क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएबल एसेट बोलते हैं. डिप्रिसिएबल एसेट होने को कंडीशन नंबर 1 एसेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना. एंड सेकंड कंडीशन एसेट यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना. एसेट का यूजफुल लाइफ कितने होना, लिमिटेड होना. Here the depreciation, what is the definition, what is the meaning of depreciation? Decreasing in the book value of the depreciable asset. Depreciate, not fixed asset. Fixed assets means land is also fixed asset, but land is appreciable asset. Here second condition वो एसेट फुलफिल ना करना चाहते हैं मगर वो एसेट को अप्रिसिएबल एसेट बोलता है वो लैंड को. हियर सेकंड कंडीशन इज एसेट यूजफुल लाइफ कितने होना, लिमिटेड होना. लैंड का वैल्यू, लैंड एसेट वैल्यू वो लिमिटेड नहीं होता मगर वो एसेट को हमें अप्रिसिएबल एसेट कहता है. बट हियर कंडीशन डिप्रिसिएबल एसेट होने को कंडीशन क्या है, एसेट यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना है. एंड थर्ड कंडीशन एसेट का यूज, ये एसेट को किसने पर्पस यूज करने का बोले तो बिजनेस का पर्पस यूज करना, वो थर्ड कंडीशन है. एंड फोर्थ कंडीशन ओनरशिप आल्सो इंक्लूडेड, डीम्ड ओनरशिप होना. ये 4 कंडीशंस फुलफिल करे तो, सेटिस्फाई करे तो वो एसेट को हमें डिप्रिसिएबल एसेट बनाते हैं. वो एसेट के हमें क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएबल एसेट बोलते हैं. ओके बच्चों, ये कंडीशंस ध्यान से सुनो बच्चों एंड कीप इन योर माइंड. डिप्रिसिएबल एसेट बना हुआ है तो कंडीशंस क्या है. फर्स्ट कंडीशन इज एसेट का यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना. एसेट यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना. एसेट का यूज वो एसेट को किसने पर्पस यूज करना है बोले तो बिजनेस का पर्पस यूज करना. ओनरशिप, डीम्ड ओनरशिप होना. ये कंडीशंस फुलफिल करे तो वो एसेट को हमें क्या बोल देते, डिप्रिसिएबल एसेट बोले थे. ओके, नाउ हियर द एसेट डिप्रिसिएबल एसेट बोलने को 4 कंडीशंस फुलफिल करे थे. ओके बच्चों, नेक्स्ट मेथड अमाउंट कैलकुलेशंस methods having there here amount calculation method and amount calculations method. First method is here, the first method is SLM method. SLM method means straight line method. ये मेथड को क्या बोल लेते मगर ये SLM मेथड बोलते हैं. वो मेथड का फुल फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड. ये मेथड को हमें दूसरा नाम है, वो नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और इसका नाम और एक है, वो नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ये मेथड को SLM मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं.
और इस मेथड को दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉल मेथड कहते हैं और इसका नाम ओरिजिनल कास्ट मेथड आल्सो कहते हैं। ये एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन कैसा कैलकुलेट करे तो हमें जब हमें पूछते हैं बच्चों जरा ध्यान से सुनो। ओके, एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट हियर वन फार्मूला है हियर। ओके, एसएलएम मेथड में फार्मूला डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को ये मेथड में असेट वैल्यू ओरिजिनल कास्ट में फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट में कैलकुलेट करते हैं। ओके, हियर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट में कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट में एसएलएम मेथड में कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो हियर सुनो बच्चों, हियर एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को एक फार्मूला है एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू original cost minus estimated scrap value divided by expected useful life of the asset. Expected useful life of the asset. Okay, सुनो बच्चों, here the annual depreciation in SLM method में कैलकुलेट करने को एक फार्मूला है। वो फार्मूला annual depreciation is equal to original cost minus estimate scrap value divided by expected useful life of the asset. Original cost of the asset. Okay, here original cost of the asset, how it is calculate करे तो बच्चे here सुनो, first here the original cost, बच्चे एक बच्चे पंडू है मेरे क्लास में, एक बच्चे पंडू है। वो पंडू एक असेट परचेज किया था, वो पंडू एक असेट परचेज किया था, वो असेट परचेज किया था, वो असेट रुपीस हाउ मच रुपीस बोले तो 50,000 रुपीस है। ओके, इसका यूजफुल expected useful life how many years बोले तो 10 years useful life है। एंड इसका scrap value is equal to 5,000 rupees. Okay, here find out करो, find out here annual depreciation. How much annual depreciation? Okay, here मेरे क्लास में एक बच्चे का नाम पंडू था। वो पंडू एक असेट परचेज किया था। वो असेट का रुपीस फॉर रुपीस हाउ मच है? ये असेट का रुपीस हाउ मच? कॉस्ट 50,000 रुपीस एंड एक्सपेक्टेड इसका 50,000 रुपीस का असेट को एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना ईयर्स है? 10 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू कितने? 5,000 रुपीस एंड फाइंड आउट एनुअल डिप्रिसिएशन। ओके, आपको मालूम है बच्चे हियर एसएलएम मेथड में कैलकुलेट करो एनुअल डिप्रिसिएशन इन एसएलएम मेथड में। Okay, in SLM method में annual depreciation is equal to original cost minus estimated scrap value divided by expected useful life of the asset. Okay, here the original cost is equal to how much here original cost of the asset? Here पंडू परचेज किया था एक asset, वो asset का रुपीस how much? 50,000 रुपीस था। ये 50,000 माइनस estimated scrap value कितने है? 5,000 रुपीस था, 5,000 रुपीस एंड एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट पीरियड हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स। ओके, हियर 45,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 4,500 रुपीस। दिस इज annual depreciation.
ओके ओके बच्चों, हियर एनुअल डिप्रिसिएशन हमें कैसे कैलकुलेट करे थे? हियर एसएलएम मेथड में एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को क्या फॉर्मूला है? Annual depreciation is equal to original cost of the asset minus estimated scrap value divided by expected useful life of the asset. Okay, here giving one question. What is the question here? एक पांडु, उनका नाम, एक बच्चे का नाम पांडु है, वो पांडु एक असेट परचेज किया था, वो ये पांडु एक असेट परचेज किया था, वो असेट हाउ मेनी रुपीज? 50,000 रुपीज असेट परचेज किया उन्होंने। नेक्स्ट इसका 50,000 रुपीज असेट का वैल्यू यूजफुल एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी ईयर्स है? 10 ईयर्स था। हियर स्क्रैप वैल्यू 5,000। फाइंड आउट करो annual depreciation in SLM method. This is question. Okay बच्चों, here annual depreciation calculate करने को here formula है original cost of the asset 50,000, scrap value 5,000, 10 years expected useful life. Okay, calculate करें तो here annual depreciation, therefore annual depreciation AD is equal to how much rupees? 4,500 rupees. That is annual depreciation in SLM method में ये एसेट को एनुअल डिप्रिसिएशन कितने हैं? 4,500 रुपीज पर ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर 4,500 रुपीज, अप टू 10 ईयर्स तक ये 4,500 रुपीज एवरी ईयर फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट पे हमें कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, दिस इज कॉस्ट, दिस इज एनुअल डिप्रिसिएशन। एंड नेक्स्ट इन एसएलएम मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करो बोलते हो नो। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे करने को? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हाउ मच? rate of depreciation how much in SLM method में? Okay, here the rate of depreciation is equal to annual depreciation divided by cost of the asset into 100. Okay, annual depreciation by cost of the asset into 100. Okay, here the annual depreciation how much? Here we are calculating how much here? 4,500 rupees. 4,500 rupees divided by cost of the asset. Okay, here the cost of the asset how much rupees? 50,000 rupees cost of the asset into 100. That is equal to 9%. Okay, now rate of depreciation is equal to how much? 9%. बच्चों अब समझ गए ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एनुअल डिप्रिसिएशन इन एसएलएम मेथड में ऐसा कैलकुलेट करना चाहिए डिप्रिसिएशन को। ओके, हियर एनुअल डिप्रिसिएशन में ओरिजिनल कास्ट कितने बचे? ओरिजिनल कास्ट हियर पांडु एक असेट परचेज किया था, उसका अमाउंट कितने हैं? 50,000 रुपीज़ है। वो 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स करे तो एनुअल डिप्रिसिएशन आ गया। नेक्स्ट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने हैं को? हियर AD मीन्स एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय cost of the asset into 100. Okay, here the original cost is 50,000. Okay, here the original cost is 50,000 and in this original cost we are including in all charges and all establishment charges. Okay, पंडू खरीद किया था एक असेट, वो असेट का वैल्यू 50,000 है, बट इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 रुपीज़ है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 रुपीज़ रहता, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इसमें इंक्लूड करना, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ओरिजिनल कास्ट ऑफ द असेट ओरिजिनल कास्ट में इंक्लूड करना। नाउ 50,000 प्लस दिस इंस्टॉलमेंट चार्जेस 5,000 इंक्लूड करने के बाद नाउ ओरिजिनल कास्ट हाउ मच रुपीज़? 55,000 होता। नाउ ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 55,000 होता। ओके, हियर इन ओरिजिनल कास्ट में इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस आल्सो इंक्लूड करना। टोटल पूरा इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड कास्ट ऑफ द एसेट पूरा टोटल करने के बाद वो टोटल का अमाउंट एसेट वैल्यू, टोटल का अमाउंट कास्ट ऑफ द ओरिजिनल कास्ट ऑफ द एसेट बोलना है। इंस्टॉलेशन चार्जेस
charges is giving here 5,000 and purchasing rupees is 50,000. 50,000 plus 5,000 is equal to, that is equal to original cost of the asset value how much बोले तो 55,000 बोलना चाहिए. ओके बच्चों here ध्यान से सुनो. Here the annual depreciation ऐसा कैलकुलेट करना and rate of depreciation also ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए. एक बार बच्चों एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि here फाइंड आउट करो, here the asset purchasing rupees cost of the asset दिए and expected useful life दिए and scrap value also दिए. Find out the annual depreciation and find out the rate of depreciation बोले तो ऐसा करना चाहिए. एक बार बच्चों हियर एक बार कास्ट ऑफ असेट देती हूँ एग्जाम में. कास्ट ऑफ असेट देती हूँ. कास्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू 50,000 देती एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 9% देती. नाउ फाइंड आउट करो एनुअल डिप्रिसिएशन. हाउ मच द एनुअल डिप्रिसिएशन. एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछती है बच्चों, ध्यान से सुनो. कास्ट ऑफ असेट देती एंड रेट ऑफ असेट दे देता बट एनुअल डिप्रिसिएशन नहीं देते. फाइंड आउट करो और कैलकुलेट करो एनुअल डिप्रिसिएशन बोलती. Now cost of the asset how much rupees 50,000 and rate of depreciation 9% means 9 by 100 that is equal to 4,500. This is AD. AD means annual depreciation. Okay, AD means annual depreciation. ऐसा एक बार एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो फाइंड आउट करो बोलती एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करो बोलती एंड नेक्स्ट एनुअल डिप्रिसिएशन एक बार कास्ट ऑफ असेट एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देने के बाद एनुअल डिप्रिसिएशन कैसा फाइंड आउट करो कैलकुलेट करो बोलती. मगर हियर आस्क कास्ट ऑफ द असेट 50,000 एंड इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करे तो आपको एनुअल डिप्रिसिएशन आता. वो एनुअल डिप्रिसिएशन 4,500 ऐसा भी 4,500 आता. ये फॉर्मूला को हियर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिए तो आप ऐसा कैलकुलेट करना, ऐसा फाइंड आउट करना एनुअल डिप्रिसिएशन. Okay, this is a SLM method. SLM method is straight line method को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं और वो मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मेथड भी बोलते हैं. Okay, straight line means per year 4,500 rupees here annual depreciation आया. और यार एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ असेट का यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है और हमें प्रिपेयर करने तो 4,500 फॉर एवरी ईयर 4 कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स होता. वो एवरी ईयर 4,500 एंड नेक्स्ट ईयर 4,000, नेक्स्ट ईयर 4,500, नेक्स्ट ईयर 4,000, अगेन ईयर 4,500 दैट इज फिक्स्ड है. ये मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता. एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मीन्स ये कैलकुलेशन हमें किस कास्ट में हमें कैलकुलेट करें तो ओरिजिनल कास्ट में, ओरिजिनल फिक्स्ड परसेंटेज ओरिजिनल कास्ट में हमें कैलकुलेट करती है. मगर वो मेथड को ओरिजिनल कास्ट मेथड बोलता. नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड. इन स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को वो फार्मूला है बच्चों, ध्यान से सुनो. ये स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें. ये डिप्रिसिएशन हमें ग्राफ में कैसे है बोले तो हियर देखो बेटे. हियर ग्राफ में हमें फर्स्ट ग्राफ में हमें ऐसा दिखते हैं. ये एक्स एंड वाई एक्सेस में ईयर्स लेना चाहिए एंड वाई एक्सेस में डिप्रिसिएशन लेना चाहिए. डिप्रिसिएशन ओके एक्स एक्सेस में डिप्रिसिएशन ईयर्स 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 like that. Okay, here the depreciation in y axis में depreciation
first year 2000 and next 4000 and next 6000 and next 8000 and next 10,000 like that. Okay, here 4000 and next 2000. Okay, first year depreciation, how much in 2000 में depreciation how much है बेटे 4500. 4500 बोले तो here 2000 है, this is 4000. 4500 बोले तो इधर आता वो 2000 में 4500 है. Next year also this is fixed installment method. Every year we are calculating on fixed percentage on original cost में calculate करते. Next second year also ये 2001 में also है depreciation 4500 आता, and 2002 में also 4500 and 2003 में also 4500 and 2004 में also 4500 like that so on. The लाइन ये ग्राफ में लाइन ऐसा आता बच्चों, ऐसे ग्राफ में लाइन आता. ये लाइन कैसे है बच्चों, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है. ये लाइन ग्राफ में कैसे दिखते हैं हमको, ये लाइन आपको हमको कैसे दिखते हैं, स्ट्रेट लाइन दिखता है ग्राफ में. मगर ये लाइन को हमें क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते. ये मेथड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड. एवरी ईयर 2000 में 4500, 2001 में 4500, 2 में 4500 लाइक दैट. Thus first year 4000, second year 4500, first year 4500, third year 4500. Every year that is fixed amount high because it is, that's why we fixed installment method. This is calculate on percentage, fixed percentage on which cost में, original cost में हमें calculate करते हैं. मगर ये method को original cost method बोलता and fixed installment method बोलता. ग्राफ में ये ऐसा दिखता है, ये लाइन आ रहा, ग्राफ में ये लाइन आ रहा, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा बोले तो ये लाइन को हमें क्या कहते हैं बोले तो ये मेथड को हमें SLM मेथड बोलते हैं. ये मेथड को हमें क्या बोलते हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कास्ट मेथड बोलते. ओके, ये मेथड वेरी यूजफुल, वेरी इजी एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट. This method, in this method, SLM method, this method is suitable for, this method is suitable for only furniture, patents, copyrights like lease, rent, that like. Okay, this is suitable only for furniture, patents, copyrights, lease, rent, etc. Okay, in this method, in this SLM method में asset का book value, expected useful life of the asset complete after the asset, that value becomes 0. This book value of asset becomes in SLM method 0, or it is equal to its scrap value. It is equal to its scrap value. In this SLM method, expected useful life of the asset period complete होने के बाद that asset book value becomes 0, or it is equal to scrap value. Or it is equal to scrap value means how much the scrap value here, 5000. This is completion of the expected useful life of the period. that asset का book value 0 होता, नहीं तो वो scrap value को equal होता, वो scrap value को equal होता है. कैसे, मगर here देखो बच्चों, here 50,000 rupees, here 50,000. देखो बच्चों, here book value 0 or it is equal to scrap value बोलना है. Here the scrap value means
यूजफुल asset का end of the useful life, end of the useful value, asset का end of the useful value means after 10 years expected useful life of asset का useful period complete होने के बाद वो असेट का बुक वैल्यू 0 होता, नहीं तो वो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को इक्वल होता। किस मेथड में? एसएलएम मेथड में बोलना चाहिए बच्चों। ओके, हियर द एसएलएम मेथड में स्क्रैप वैल्यू कैसे करना? ओके, हियर द स्क्रैप वैल्यू मीन्स हियर द कॉस्ट ऑफ द असेट इज इक्वल टू हाउ मच हियर परचेजिंग। एक पांडु परचेज किया था ना एक असेट, वो असेट का वैल्यू कितने हैं बोले तो 50,000 रुपीज़ था। वो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट पीरियड हाउ मच 10 ईयर्स रहता। वो यूजफुल लाइफ ऑफ द पीरियड हाउ मच 10 ईयर्स। 10 years for annual 10 years for annual depreciation for total 10 years. Total 10 years for annual depreciation. Annual depreciation is equal to 45,000. Now scrap value. Now scrap value how much? Scrap value how much? Here the cost of the asset is equal to how much rupees? Cost of the asset is equal to how much rupees? 50,000 rupees. Total number of years annual depreciation how much? 45,000. Remaining 5,000, this is the scrap value. It is the end of the useful life of the asset value, end of the useful. After 10 years complete after value how much? 5,000 rupees. Okay, total depreciation, total 10 years depreciation means 4,500 plus 4,500 plus 4,500 plus 4,500 plus 4,500 up to 10 years we are calculate करें तो वो 45,000 आता। वो 45,000 total number of expected useful number of years, total number of years annual depreciation minus cost of the original cost of the asset value is equal to that difference between the cost of the asset and total number of the annual depreciation, 10 years depreciation is equal to 5,000 rupees. This is scrap value. It is an asset end of the useful life value, useful life value ऐसा कैलकुलेट करना है बच्चों। रेट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें हमें, नेक्स्ट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें हमें, नेक्स्ट एनुअल डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में एक बार कैसे पूछते हैं कि एक बार एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द असेट देती एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देती एंड फाइंड आउट करो एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे करना चाहिए कि हियर ऐसा करना चाहिए। ओके, कास्ट इनटू रेट करने तो एनुअल डिप्रिसिएशन आता। ओके, स्क्रैप वैल्यू कैसा कैलकुलेट करना है कि हियर स्क्रैप वैल्यू मीन्स कास्ट ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द असेट minus total cost of the expected useful periods life of the depreciation, annual depreciation value, that is equal to, that difference is equal to 5,000 रुपीस आता। वो 5,000 को हमें क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलते। ओके, दिस इज असेट वैल्यू 50,000 आफ्टर 10 years वो असेट वैल्यू, वो असेट का बुक वैल्यू इन एसएलएम मेथड में 0 होता, नहीं तो वो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को इक्वल होता, वो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को इक्वल रहता है। किस मेथड में बोले तो एसएलएम मेथड में बोलना। बुक वैल्यू इस मेथड में बुक वैल्यू ऑफ असेट वैल्यू इज इक्वल टू 0 होता, नहीं तो वो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को इक्वल रहता है। Now the scrap value is equal to 5,000 आ रहा, ओके ना। Here this is the
SLM मेथड, इन SLM मेथड में हमें एनुअल डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करें हमें, एंड नेक्स्ट हमें कास्ट देता एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिए तो एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने को हमें हियर किया, एंड नेक्स्ट स्क्रैप वैल्यू कास्ट ऑफ एसेट देती, एंड नेक्स्ट देन आफ्टर टोटल annual depreciation, total number of annual depreciation, total number of annual depreciation माइनस करें तो स्क्रैप वैल्यू आता। फिर ये एसेट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ पीरियड, यूजफुल लाइफ ऑफ द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट वैल्यू दैट आफ्टर वो एसेट वैल्यू बुक वैल्यू, एसेट का बुक वैल्यू 0 होता, नहीं तो वो वैल्यू किसको इक्वल होता, स्क्रैप वैल्यू को इक्वल होता। ऐसा कैलकुलेट करना है बच्चों SLM मेथड में। ग्राफ में हमें ग्राफ में भी दिखाया था, वो ग्राफ में एक लाइन आ रहा, वो लाइन स्ट्रेट लाइन आ रहा, वो लाइन स्ट्रेट लाइन आ रहा, मगर वो मेथड को हमें क्या बोलता, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता। एंड ये डिप्रिसिएशन, ये एनुअल डिप्रिसिएशन एवरी ईयर फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट में एवरी ईयर फिक्स्ड होता, मगर वो मेथड को हमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता। एंड इस मेथड में हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल कास्ट में कैलकुलेट करते हैं, मगर ये मेथड को हमें ओरिजिनल कास्ट मेथड भी बोलता है। ओके, हियर द नेक्स्ट, दिस इज अ SLM मेथड बच्चों। SLM मेथड प्लीज कीप इन योर माइंड, SLM मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता, वो मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता, एंड वो मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता, और वो मेथड को ओरिजिनल कास्ट मेथड आल्सो बोलते हैं बच्चों। Okay, next method is written down value method. Written down value method। ये मेथड को हमें WDV कहता, ये मेथड को हमें क्या कहता बच्चों, WDV को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है हमें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और ये मेथड को हमें रेड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी कहता है बच्चों, रेड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी बोलता है ये मेथड को, रिटर्न डाउन वैल्यू, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आल्सो कहता है ये मेथड को बच्चों। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड WDV बोले तो रिटर्न डाउन वैल्यू कहता है हमें, ये मेथड को WDV मेथड बोलता, ये मेथड को हमें, और इस मेथड को हमें रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता, एंड इस मेथड को हमें क्या कहता, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आल्सो कहता है बच्चों। प्लीज लिसन हियर एंड केयरफुल लिसन हियर बच्चों। फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड मेथड इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हमें WDV कहते हैं, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस में भी कहता है। ओके बच्चों, हियर द रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड में हमें कैसे कैलकुलेट करें तो बैलेंस एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने को, हियर इस मेथड में हमें फर्स्ट ईयर फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट पे हमें फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करती, एंड देन आफ्टर ईयर्स द रेड्यूसिंग वैल्यू ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन रेड्यूसिंग वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे करती है हियर बताते मैं बच्चों। हियर द स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस इज SLM मेथड एंड दिस इज WDV मेथड। ओके, हियर द स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें इन क्रेडिट साइड बाय डिप्रिसिएशन हाउ मच बचे 4500 आया था ना फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। ओके, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 4500 एंड
हियर बैंक कॉस्ट ऑफ द असेट है पंडू पंडू है ना हमारे क्लास में एक बच्चा पंडू वो पंडू परचेज किया था ना एक असेट वो असेट का वैल्यू कितने हैं 50,000 रुपीज़ है ये 50,000 डेबिट में लिखना है ओके हियर 50,000 फर्स्ट ईयर 50,000 रुपीज़ परचेज किया था एंड हियर 50,000 नेक्स्ट 4,500 बोले तो बाय बैलेंस carry down value how much बचे balance carry down value balance carry down value how much 50,000 minus 4,500 rupees how much 45,500 okay next year in this is SLM method में next year also depreciation कैसे calculate करते हमें फिक्स्ड अमाउंट एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे है सेकेंड ईयर में भी 4,500 लिखना चाहिए हियर द 4,500 हियर 4,500 फॉर द बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू ओके बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू 45,500 here also 45,500 and next year also by depreciation how much लेना चाहिए बच्चे 4,500 लेना चाहिए next year and here also balance brought down लेते and fourth year also by depreciation कितना लेना चाहिए बच्चे 4,500 लेना first year 4,500 and second year 4,500 third year 4,500 fourth year 4,500 up to expected useful life का years how many years 10 years तक वो 4,500 लेना चाहिए this is SLM मेथड में ऐसा डिप्रिसिएशन का ऐसा असेट अकाउंट कैलकुलेट करती है बट इन WDV मेथड में कैसे करने को बच्चों सुनो हियर ध्यान से बाय डिप्रिसिएशन हियर WDV मेथड में फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन टू बैंक हाउ मच रुपीस लेना चाहिए हियर 50,000 रुपीस बैंक लेना एंड नेक्स्ट देन आफ्टर बाय डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 4,500 लेना चाहिए बच्चों इन WDV मेथड में okay here 50,000 and 50,000 here also 50,000 minus 4,500 how much 45,500 this is by balance carry down value बोलना चाहिए okay next here to balance brought down value how much balance brought down value second year 45,500 okay now in second year by depreciation now how we will calculate करने हैं बच्चों here ध्यान से सुनो here 42nd year how much है balance brought down value 45,500 वो 45,500 into 10% को कैलकुलेट करना ऐसा कैलकुलेट करें तो 4,550 का आता now 45,500 here also 45,500 minus 4,550 and next then after balance third year balance brought down value here how much that value on 10% fixed percentage on reducing value में कैलकुलेट करना है WDV मेथड में ओके SLM मेथड में डिप्रिसिएशन 4,500 लेना एंड WDV मेथड में फर्स्ट ईयर फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट में फर्स्ट ईयर एनुअल डिप्रिसिएशन लेना चाहिए एंड देन आफ्टर ईयर्स रेड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द असेट वैल्यू को रेड्यूसिंग वैल्यू ऑफ असेट को हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए ओके सेकंड ईयर में 45,500 है ना ये 45,500 के बाद में 45,500 इंटू 10% 10/100 ये कैलकुलेट करना हियर 4,550 है नेक्स्ट माइनस 4,550 then we get some value that reducing value पे हमें
परसेंटेज को फिक्स्ड परसेंटेज को మనం हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए। वो ऐसा करे तो ये मेथड को हमें क्या बोलते हैं बच्चों? WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले थे। रेड्यूसिंग बैलेंस वैल्यू मेथड। रेड्यूसिंग कैसे रेड्यूस होता है? फर्स्ट ईयर 4500 रहता, आफ्टर 45,500 नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच था? 45,500 ईयर आफ्टर ईयर एवरी ईयर वैल्यू डिक्रीज होता है, रेड्यूसिंग होता ना। रेड्यूसिंग पे हमें ये परसेंटेज फिक्स्ड परसेंटेज कैलकुलेट करना डिप्रिसिएशन। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस डिप्रिसिएशन WDV रिटर्न डाउन वैल्यू or reducing balance method, or this method is called also diminishing balance method. In this method the book value of asset value becomes not zero. Only SLM method में value of book value of asset value every year 4,500 4,500 लेना चाहते हैं। लास्ट में ये expected useful life of the asset का value, then after this value only becomes in SLM method में बुक वैल्यू 0 होता, नहीं तो वो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को इक्वल होता। बट WDV मेथड में 0 नहीं होता, एसेट का बुक वैल्यू एसेट का बुक वैल्यू 0 नहीं होता। ये मेथड वेरी इजी टू कैलकुलेटिंग मेथड है, वो मेथड SLM मेथड कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो एंड कीप इन योर माइंड बच्चों, डिप्रिसिएशन बोले तो हमें डिप्रिसिएशन बोलने को डेफिनेशन भी दिया था। Decreasing in the value of the asset is called as depreciation. That is general definition. But in our accounting, the depreciation means decreasing in book value of the depreciable asset को हमें depreciation कहता है। वो depreciable asset होने को causes of depreciation हमें बोलने चाहिए। वो asset, वो causes, first cause is wear and tear, and second cause is depletion, third amortization, fourth obsolescence, and fifth passage of time. Okay, next these are depreciable asset कहना को वो asset को 4 conditions fulfill करना, वो 4 conditions fulfill करे तो वो asset को हमें क्या बोलते हैं? depreciable asset बोलते हैं। हमें बोलने चाहिए first condition। what is the first condition बच्चों? वो condition asset का useful life more than 1 year होना, more than 1 year होना। एंड सेकंड कंडीशन इज असेट का यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना। यूजफुल लाइफ कितना होना? लिमिटेड होना। मगर हियर द डेफिनेशन इज डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीजिंग इन बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट बोले तो वो रॉन्ग होता। फिक्स्ड असेट में लैंड भी इंक्लूड होता, वो लैंड अप्रिसिएबल असेट है। अप्रिसिएबल असेट दिस इज नॉट सूटेबल फॉर डिप्रिसिएशन। मगर हमें डेफिनेशन क्या किया? वो डिप्रिसिएबल असेट, डिक्रीजिंग इन बुक वैल्यू ऑफ द डिप्रिसिएबल असेट को हमें क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। बट हियर सेकंड कंडीशन इज अकाउंट्स असेट वैल्यू यूजफुल लाइफ, असेट का यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना, लैंड वैल्यू लिमिटेड ना होता, मगर वो नहीं हमें लेना चाहिए इसमें। कंडीशन थर्ड कंडीशन असेट यूजफुल, असेट का यूजफुल, ये असेट्स को डिप्रिसिएबल असेट को यूज किसने पर्पस होना बोले तो बिजनेस का पर्पस होना, ये मस्ट बिजनेस के पर्पस होना। एंड थर्ड कंडीशन नंबर फोर्थ कंडीशन इज ओनरशिप आल्सो इंक्लूडेड टू डीम्ड ओनरशिप होना चाहिए बच्चों। ये कंडीशंस फुलफिल करे तो वो असेट को हमें क्या बोले थे? डिप्रिसिएबल असेट बोलने थे। ये असेट्स पूरा ये कंडीशंस भी पूरा कंडीशंस माइंड में कीप करो, इन ओवर माइंड में ध्यान से सुनो बच्चों। ये डिप्रिसिएशन वर्ड इट इज ऑरिजिन फ्रॉम विच वर्ड? लैटिन वर्ड ऑफ डिप्रीटियम। लैटिन वर्ड ऑफ डिप्रीटियम, डी मीन्स डिक्रीज and pretium means price. Okay, these are the questions. Okay, next these are the conditions, and the next one we are using first method in amount calculations.
मेथड में फर्स्ट मेथड एसएलएम मेथड का था हमें। एसएलएम मेथड बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है उनको। वो मेथड को और एक नाम है, वो नाम ओरिजिनल कास्ट का मेथड बोलते, एंड वो मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते, एंड वो मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलता। एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, एसएलएम, ओरिजिनल कास्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, दीज आर ऑल एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है। में एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने तो हमें एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को ओरिजिनल कास्ट ऑफ द असेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द asset. Okay, how it is calculate करना, I told you बच्चों, ये एनुअल डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करें हमें। एंड नेक्स्ट एक बार बच्चों एग्जाम में पूछते हैं, एक बार कास्ट ऑफ असेट देती एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देता, फाइंड आउट करो एनुअल डिप्रिसिएशन बोलता। वेला हाउ इट इज फाइंड आउट करना बोलने को हमें बोल दिया बच्चों। वो कैसा फाइंड आउट करना, कास्ट ऑफ असेट एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिए तो कास्ट इनटू रेट, कास्ट हाउ मच 50,000 एंड रेट 9%, that is equal to 4,500, that is annual depreciation. Okay बच्चों, keep in your mind also SLM method में this is very easy method and very useful method, and it is calculate very easy. And in this method, after completion of the expected useful life of value, then this book value, asset का book value जीरो होता नहीं तो ये वैल्यू इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू को इक्वल होता। ये भी माइंड में रख दो बच्चों। एसएलएम मेथड में बुक वैल्यू कैसा होता, डैश कैसा होता, जीरो होता, और नहीं तो ये स्क्रैप वैल्यू को इक्वल होता बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एसएलएम मेथड में एवरी ईयर कांस्टेंट रहता डिप्रिसिएशन। दिस डिप्रिसिएशन वी आर कैलकुलेटिंग इन विच कॉस्ट में, ओरिजिनल कास्ट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कास्ट में हमें कैलकुलेट करे थे। वो मेथड को हमें क्या बोलता, ओरिजिनल कास्ट मेथड बोलता। वो एनुअल डिप्रिसिएशन एवरी ईयर 4,500 आया ना मन, हाँ हमको वो 4,500, नेक्स्ट ईयर आल्सो 4,000, नेक्स्ट ईयर आल्सो 4,500, नेक्स्ट ईयर 4,500, नेक्स्ट ईयर 4,500, लाइक दैट इज फिक्स्ड है। मगर ये मेथड को हमें क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलता है। इन ग्राफ पेपर में भी हमें दिखाया था, ग्राफ में एक्स एक्सेस में ईयर्स एंड वाई एक्सेस में डिप्रिसिएशन लिखना चाहिए। एक्स एक्सेस में ईयर्स बोले तो 2000 में 4,500 आया था, एंड 2001 में 4,500, 2002 में 4,500 इन एसएलएम मेथड में। दैट इज इक्वल लाइन आया था। वो लाइन को हमें क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता। वो लाइन को हमें क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। मगर को हमें स्ट्रेट लाइन मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, these are दूसरा नाम है इन एसएलएम मेथड को। नेक्स्ट सेकंड मेथड इज WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आल्सो कहता है बच्चों। हियर इन दिस WDV मेथड में फर्स्ट ईयर depreciation we are calculating depreciation on fixed percentage on original cost, and then after years reducing value पे हमें कैलकुलेट करता। मगर ये मेथड को हमें क्या कहते हैं कि WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एवरी ईयर रिटर्न डाउन डिमिनिशिंग रेड्यूस होता ना, वैल्यू रेड्यूस होता है कि वो रेड्यूसिंग वैल्यू पे हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है कि। मगर वो मेथड को हमें क्या बोलते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और WDV मेथड कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास वी विल सी यू टुमारो।